Today we have Shri Durga Prasad Verma with us. Sir has graduated from DBS PG College, Dehradun in 1991. Sir has shown his leadership skills in the early days as he was elected as the president of the student union. He has contributed greatly to the field of education as well as excelled in various business related to real estates and etc. Shri Verma is an eminent entrepreneur and has the art of creativity in his work. Sir has been awarded the Best Uttarakhand Educator of the Year Award 2017 by Human Rights Protection Centre, Uttarakhand Science and Technology Council, and Uttarakhand State Law Commission. Sir has also established Shri Ram Manohar Verma Charitable Trust for providing scholarship to meritorious students who are poor and cannot afford the education that they aspire to. In the field of education, Sir has provided from basic to higher professional education in the state of Uttarakhand. St. Xavier School has been established to impart quality education to basic and senior secondary schools. In field of professional studies, Shri Durga Verma Sir has established Siddharth Law College to impart legal education, Siddharth Institute of Pharmacy for pharmacy, Siddharth College of Nursing and Research Institute for nursing education, and Shivalik Institute of Ayurvedic and Research to impart Ayurvedic education. Sir has also been a great entrepreneur and has created a milestone in real estate. Sir is the managing director of Mahadev Property and Builders Private Limited. After having so much experience in the business sector, Sir has always had a strong desire to elevate the life of the people of our country and has been a social activist. Sir was awarded as a Corona Warrior Award by the District Magistrate Dehradun in 2020 and Uttarakhand State Human Rights Commission. We welcome you, sir. Thank you. So, sir, let's start the interview. My first question to you is that being the chairperson of Siddharth Group of Institutions, how do you strategize about the key programs and plans for marketing and administration of your college? सांजी, मैं जहाँ तक मार्केटिंग के रिगार्डिंग संस्थान के, मेरा विश्वास है माउथ पब्लिसिटी द बेस्ट पब्लिसिटी, और माउथ पब्लिसिटी तभी क्रिएट होती है जब आप अपना बेस्ट वर्क कर रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो वो बेस्ट हो। और आपके ब्रांड एम्बेसडर फिल्मी हीरो ना होकर यदि आपका स्टूडेंट आपका ब्रांड एम्बेसडर बने तो इससे रियलिस्टिक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे स्टूडेंट हैं। जी सर। और ये समझ लीजिए कि मैं कॉमर्शियल ग्लैमरस मार्केटिंग में बिलीव नहीं करता, इसीलिए हमारे कॉलेज का कोई भी होर्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या आप ये कह लीजिए टीवी और चाहे अखबार में न्यूज़ जरूर आती है हमारे, लेकिन वो हमारे अचीवमेंट्स की आती है, जो हमारे स्टूडेंट अचीव करते हैं या हमारे फैकल्टीज के द्वारा जो अचीव किया जाता है। ओवरऑल अगर ये सब चीज़ें अचीव होती हैं तो वो निश्चित तौर पे एक संस्थान अचीव कर रहा होता है। तो मैं बिलीव करता हूँ माउथ पब्लिसिटी मार्केटिंग में, और ब्रांड एम्बेसडर हमारे स्टूडेंट बने, मैं इसी में विश्वास रखता हूँ। जी सर। Sir, how does the curriculum of your institute ensure the best practices in the industry? देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में जो आपका ये सवाल है, बहुत कॉलेज के मामले में ये जनरली क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन में बच्चों को बहुत ज्यादा बर्डन रहता है। उस एजुकेशन बर्डन को मैं तो कहूँगा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो उनके बर्डन को उनको रिलैक्स फील कराने के लिए देनी चाहिए। उसमें चाहे हमारी आउटिंग्स हो, ट्रैकिंग हो, या अपने क्योंकि हमारे यहाँ 16 स्टेट से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो अपने स्टेट्स के बारे में उनको जानकारियां, उनसे इंटरेक्शंस हो, स्पोर्ट्स हो, और कुछ इंटरेस्टिंग क्विज प्रोग्राम्स हो। इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में मैं बिलीव करता हूँ, ये संस्था बिलीव करती है, जिसके कारण एक हेल्दी एनवायरनमेंट ऑलवेज कॉलेज में बना रहता है। सर, आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स एंड द कॉलेज, वो आपके हिसाब से क्या हैं, बीइंग द चेयरपर्सन? बीइंग द चेयरपर्सन मेरा जो सबसे पहला उत्तरदायित्व तो मैं मानता हूँ
कि वो सारे संसाधन, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ बोथ, क्योंकि कई बार हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और स्टाफ को भूल जाते हैं। लेकिन जो स्टाफ, मैं तो कहूंगा जो हमारा क्लास 4 का स्टाफ है, सबसे पहले उसके बारे में सोचिए, क्योंकि वही आपके संस्थान को अच्छे से तैयार करता है बच्चे, ताकि उसमें आकर अच्छे से स्टडी कर सके, स्टाफ अच्छे से आके अपना वर्क कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, चाहे वो हमारा क्लास 4 एम्प्लॉइज हो या हमारा स्टूडेंट हो या किसी भी लेवल का स्टाफ हो, उनको मुहैया कराना पहली मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट किसी भी संस्था का होना जिसमें बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करें, बच्चे अपने को कंफर्टेबल महसूस करें और बच्चे अपने को एक बेझिझक अपनी बात को रखने का उनको माहौल दिया जाए। इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना कॉलेज में मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। और तीसरी बात मैं इस कॉलेज में जो देखता हूं, क्योंकि जो मोटिव है वो है एजुकेशन प्रोवाइड करना। बीइंग एजुकेशनिस्ट, हमारा वो पहला सिद्धांत होना चाहिए कि हमारे संस्थान में जो बच्चा आया है वो अपनी एजुकेशन कभी भी धन के अभाव में अधूरी ना छोड़े, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। ये हमारी जिम्मेदारी है बीइंग ए चेयरपर्सन। जी सर। एंड सर, आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में आपकी और आपके कॉलेज की सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए प्रशांत जी, मैं ये कहूं कि हम लोग अपने संस्थान की, बेसिकली हम एक जनरली डिग्री प्रोवाइडर बनकर हम एक कॉलेज नहीं चलाना चाहते जी। डिग्री प्रोवाइड करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। और मैं ये चाहता हूं कि हम लोग बच्चे को ऐसी नॉलेज दें जिसके माध्यम से वो एक रिफॉर्मर बन के सोसाइटी में सर्व कर पाए, सोसाइटी में वो रिफॉर्म के लिए जाना जाए, जिसके लिए चाहे जितने भी रिसर्च प्रोग्राम हैं या उनका एक्सपोजर उनको जहां भी चाहिए, चाहे लॉ में उनको, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हमारी संस्था में हैं और हमारे लॉ डिपार्टमेंट को जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो हेड करते हैं। तो बच्चों को किसी भी लेवल पर नॉलेज की उनके मिलने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि डिग्री देना हमारा उद्देश्य नहीं है, नॉलेज देना हमारा उद्देश्य है। और अगर बच्चों के पास अच्छी नॉलेज होगी, सब्जेक्ट अच्छी नॉलेज होगी, तो नेचुरली वो हमारी कंट्री में एक रिफॉर्मर बन के सामने आएंगे और उससे सबका ही भला होगा। जी सर, ये सुन के काफी अच्छा लगा सर। एंड सर, अगला क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि इंटर्नशिप, सेमिनार्स, प्लेसमेंट्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए प्रशांत जी, जनरली इंटर्नशिप, सेमिनार्स ये तो मैंडेटरी है, मैं इसमें चॉइस नहीं कहता, किसी भी संस्था के लिए मैंडेटरी है। क्योंकि अगर बच्चों को उस लेवल पे आप इंटरेक्शन नहीं कराएंगे, आप सेमिनार्स, अभी लास्ट मंथ में हम लोगों ने इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया था अपने कॉलेज, उसमें कई कंट्रियों के स्टूडेंट्स और कई कंट्री के जो एचओडीज थे वो शामिल हुए और उसका बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन सभी तरफ से हमें मिला, संस्था को भी मिला, बच्चों को भी मिला और एक एक्सपोजर मिला सभी को। करंट सिनेरियो में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं रिसर्च पे, उस पर बहुत लंबी वो सेमिनार था और ये तो एक मैंडेटरी फीचर है, हर कॉलेज का होना चाहिए। जहां तक और बातें जो हैं बच्चों के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो मैं तो एक बात कहूंगा कि हमें हमारे लॉ के स्टूडेंट्स ने 2 बार ब्लैक लिस्ट करवाया प्लेसमेंट सर्विसेज कंपनीज के आगे, क्योंकि भाई जितने बच्चों को हम लोग प्लेसमेंट में 100 बच्चे एटलीस्ट आने चाहिए, हमारे यहाँ के बच्चे अपने को सेल्फ जो है खुद ही प्लेसमेंट दे लेते हैं और वो आते कम है। उन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया कि आप 20 स्टूडेंट के साथ हमारे साथ बैठे हो और आपने 100 कमिट किए, तो हम बच्चों को इन्फोर्स करके अपने यहाँ प्लेसमेंट की प्रॉब्लम सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में और सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में कभी नहीं रही है, क्योंकि बच्चों के पास नॉलेज होती है और जिनके पास नॉलेज होती है वो किसी दूसरे के प्लेसमेंट का इंतजार नहीं करते, वो खुद अपने रास्ते आप बना लेते हैं। और वैसे प्लेसमेंट सेल हमारे बहुत मजबूत बनाए हुए हैं और इंटरेक्शन और उन लोगों का, हम लोग दूसरे कॉलेज के लिए प्लेसमेंट कर रहे हैं। फार्मेसी में हमने लास्ट ईयर
अबाउट 120 स्टूडेंट प्लेस किए हैं, लेकिन उसमें हमारे स्टूडेंट कम थे, दूसरे कॉलेजों के ज्यादा थे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट अपने को खुद ही प्लेस कर चुके हैं। जी प्रशांत जी सर, आपने जैसे बताया आपके कॉलेज के अंदर 16 स्टेट से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो कॉलेज के अंदर ऐसे कोई वेलकम उनको करने के लिए या फिर वो कंफर्टेबल फील करें इस कॉलेज के एनवायरनमेंट में, ऐसा कोई प्रावधान या फिर कोई चीजें ऐसी सिचुएटेड हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे संस्थान के अंदर जो सीनियर है, हम लोग एक आज भी थोड़ा सा कुछ मामले में हमें चाहे कोई ऑर्थोडॉक्स कह ले, आज भी हम गुरु शिष्य परंपरा में बिलीव करते हैं। तो जब गुरु शिष्य परंपरा में हम बिलीव करते हैं तो नेचुरली एक बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण कॉलेज के अंदर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो किसी भी स्टेट के किसी भी कोने से आए, उसको यहाँ पर किसी तरह का उसको मतलब ये समझ लीजिए कि भेदभाव किसी भी स्तर पे नहीं मिलता, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। और छात्रों को यहाँ पर, जहां तक मैं समझता हूं कि जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं कॉलेज के अंदर, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके कल्चर्स को एक्सचेंज करने का एक बहुत अच्छा हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो अपने यहाँ के कुछ जो कल्चरल जो उनके रिचुअल्स हैं वो उसको प्ले करें, प्ले के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट करें बच्चों के आगे। तो वो एक, मैं समझता हूँ कि उनका आपस में इतना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हम लोग करवा देते हैं कि उनके आपस में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है और किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ तक मैं समझता हूँ बेहतर बच्चे ही बता पाएंगे। जी सर। सर, जब आपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तब आपका एक विजन रहा होगा, तो आज आप क्या देखते हैं कि वो विजन कितना इवॉल्व हुआ है? देखिए प्रशांत जी, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, जिसको मैं ये कहूँ कि आज कंप्लीट हो गया या आज से 5 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो हर नए दिन एक नई चुनौतियां हैं और हमको उसको सामना करके एक बेहतर एजुकेशन अगर प्रोवाइडर है तो उसके लिए तो नए शोध, नई जरूरतें, नई चुनौतियों का सामना, जैसे लास्ट ईयर ऑनलाइन एजुकेशन की चुनौती हम लोगों के सामने आई, उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने परफॉर्म किया। और हमारी यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, नेचुरली उनकी तरफ से भी मैं उनको भी हेड्स ऑफ करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत जल्दी अपने को कंफर्टेबल कर लिया इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से। उन्होंने सारे बैक पेपर ऑनलाइन के माध्यम से कराए, इवन सारे हमारे एग्जाम्स बच्चों के ऑनलाइन के माध्यम से कराए। और आज हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल ऑन टाइम शुरू होने जा रहा है ड्यू टू उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कि उन्होंने बहुत जल्दी अपने को इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर कंफर्टेबल कर लिया था। तो हम लोग अपनी तरफ से हमेशा, आज से 5 साल पहले जो कॉलेज की स्थिति थी वो आज नहीं है, आज से 5 साल बाद और अच्छी होगी। हम प्रोग्रेसिव और सकारात्मक सोच के लोग हैं। हमारा तो यह है एक सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और ये बच्चे ताकि उसका फायदा उठा सके। जी सर। सर, what do you see as Siddharth group of institutions greatest strengths? क्या सबसे ज्यादा आपकी जो है वो ताकत है आज के टाइम पे? मैं सबसे बड़ी ताकत मानता हूं अपने कॉलेज की सरलता। जो हम लोग बहुत सरलता, बहुत जटिलताएं हमारे कॉलेज में नहीं है कि आदमी आके अपने को परेशान सा महसूस करे। सबसे बड़ा सरल स्वभाव से बच्चों से मिलो। बीइंग ए चेयरपर्सन, मैं भी छात्रों के बीच में बड़ी सरलता से उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है कि बच्चे हम में फेथ रखते हैं, हमारी बात पे फेथ रखते हैं। तो विश्वास एक तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो बच्चे के अंदर हमने बनाई है कि हम जो कहेंगे वो उनके लिए जरूर करेंगे। दूसरी स्ट्रेंथ हमारी ये है कि हम लोग बीइंग एकेडमिशियन बहुत ईमानदारी से अपनी एजुकेशन को देना चाहते हैं। नकल को हम बिल्कुल अपने कॉलेज में प्रमोट नहीं होना देना चाहते। इसीलिए हमारे कॉलेज को तमाम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने की जिम्मेदारी इस संस्था को प्राप्त होती है। चाहे पूरे उत्तराखंड में हमने लास्ट ईयर क्लैट के एग्जाम्स कराए थे, जिसकी जिम्मेदारी हमारे प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स को दी गई थी। इस साल हमारे ही कॉलेज को क्लैट का सेंटर बनाया गया, हमारे ही कॉलेज को नीट का सेंटर बनाया गया। तो ये तमाम जो, क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदारी से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जो
इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराने की बॉडीज हैं, वो हम पर ट्रस्ट करती हैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारा ट्रस्ट, विश्वास, जो हमने कायम किया है। जी सर मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कोई ऐसी सजेशन आप देना चाहेंगे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को जो कि लॉ में या फार्मेसी या नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, शायद कुछ कड़वा भी लगे, कि देखिए डिग्री लेने आ रहे हो तो हमारे यहाँ मत आना, अगर नॉलेज लेने आ रहे हो तो हमारे यहाँ आना। क्योंकि डिग्री जो है वो हो सकता है आपको जॉब दे ना दे, लेकिन नॉलेज आपको जॉब तो देगी, लेकिन लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन नहीं। आपका फोकस, आपको एक प्रोफेशनल एजुकेशन में यदि आप आ रहे हैं तो पूरी सीरियसनेस के साथ आना चाहिए। यदि आप अपनी एजुकेशन को फोकस करके नहीं आएंगे और कॉलेज में अपने उसको टारगेट अपना नहीं बना के चलेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपने को भी धोखा देंगे और अपने परिवार को भी धोखा देंगे। उनके वैल्यूएबल्स मनी को आप लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, वेस्ट करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग जस्ट सोसाइटी में अपने को डेकोरेट करने के लिए डिग्री लें। मैं चाहता हूं कि नॉलेज को पाने के लिए आप कॉलेजों में जाएं। नॉलेज आपको हमेशा डेकोरेट कर रखेगी, लाइफ के अंतिम क्षणों तक आपको डेकोरेट करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया, आपने इंटरव्यू दिया, एंड आई एम श्योर जो ये इंटरव्यू देखेंगे उनको काफी सिद्धार्थ और आपके भी बारे में पता चलेगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कि आपने मुझे मतलब ये अवसर प्रदान किया। नहीं, मैं चाहता हूँ बच्चों को फायदा हो, मेरा तो यही मोटिव है। धन्यवाद। थैंक यू सर।